Hello students, this is the new class with the data frame. In last video we have studied about the series of pandas the library. Now this is the next one is data frame. So just like a series is only one dimensional. It has only one column. Okay, but a data frame like a two-dimensional array, or you can say just like a table with heterogeneous values. Heterogeneous values means each column may have different types of data elements. As you can see in the picture, there are so many columns, है ना? So serial number, admission number, student name, class, section, gender and date of birth, and you can put these values. Serial number 1 2 3, admission number is also given, student name is given. So this is the tabular form. So whenever you want to insert data in tabular form, we should use data frame. Okay, and this is the features of data frames are heterogeneous values. As I have mentioned earlier, it can handle different types of values. Size is mutable. That means data frame can be resized. Okay, you can increase or decrease the number of rows or column, है ना? And data is also mutable. You can change inside the data. Okay, now uh, what are the other features of data frame? Column may be of different types because heterogeneous. Size can be changed, mutable. Label access, row and column form if we can convert this, and arithmetic operation on row and column. You can perform so many types of arithmetic operations in data frame. You can add multiple data frames. You can subtract, multiply and divide, as well as you can perform various arithmetic operations on columns also. Clear, students? So rows, we can extract subparts from the data frames. We can merge two columns simultaneously. We can merge two data frames simultaneously. So that we will see in that class. Okay, so what is the structure, or what is the syntax to create a data frame? As you can see on the last line, pandas. Okay, you can create the library also, you can import the libraries. So we need to import the libraries as import pandas as pd. Okay, और अदरवाइज आप एच पी डी नहीं लिखते तो डायरेक्ट यू कैन पोट द पांडाज. सो पांडाज डॉट डेटा फ्रेम, है ना? जब हमने सीरीज क्रिएट किया था तो हमने लिखा था पांडाज डॉट सीरीज, बट यहाँ पर क्या लिख रहे हैं? पांडाज डॉट डेटा फ्रेम. डी और एफ कैपिटल है. इन ब्रैकेट सबसे पहले डेटा, यानी जिस डेटा के थ्रू आप डेटा फ्रेम क्रिएट करना चाहते हैं. देन इंडेक्स, सीरीज के साथ भी इंडेक्स था. देन कॉलम्स, यहाँ पर हम कॉलम्स का नाम मेंशन करेंगे. एंड डेटा टाइप, उससे हम डेटा टाइप, अलग अलग कॉलम्स का डेटा टाइप शो कर सकते हैं या सिमिलर डेटा टाइप दे सकते हैं. एंड कॉपी. ओके, सो दिस इज द मेन सिंटैक्स ऑफ creating any data frame. The first four are very important: data, index, column, d type. Okay, so now data frame can be created from many things, है ना? It can be created via list. Okay, you can create from the list, you can create from the dictionary. We can create series also from the list and dictionary. You can create from series, है ना? मल्टीपल सीरीज या सिंगल सीरीज को मिलाकर भी डेटा फ्रेम क्रिएट किया जा सकता है. यू कैन क्रिएट numpy and d arrays. यू कैन क्रिएट विद द हेल्प ऑफ अनदर डेटा फ्रेम, है ना? अनदर डेटा फ्रेम मतलब एक से ज़्यादा डेटा फ्रेम को मर्ज किया जा सकता है, या किसी डेटा फ्रेम में से स्मॉल वैल्यूज़ को लिया जा सकता है या सब पार्ट को लिया जा सकता है. नाउ लेट्स सी हाउ टू क्रिएट एन एम्प्टी डेटा फ्रेम, है ना? एम्प्टी डेटा फ्रेम को क्रिएट करने के लिए जस्ट वी हैव टू राइट, फर्स्ट वी विल इम्पोर्ट द डायरेक्टरी और लाइब्रेरी. इम्पोर्ट पांडाज एज pd1. यहाँ पर हमने pd1 नाम दिया है. आप pd दे सकते हैं या pd2 दे सकते हैं, या जो नाम देना हो वो दे सकते हैं. देन
df1 is a variable for data frame, so df1 equal to pd1 dot data frame and print df1, ठीक है। सो यहाँ पर आप साइड में देखेंगे कि कॉलम्स कितने होंगे इसके अंदर, कॉलम ब्लैंक होंगे और इंडेक्स भी क्या होगा, ब्लैंक होगा, बिकॉज वी हैव क्रिएटेड एन empty data frame. So this is the syntax to create a empty data frame, ठीक है। okay, next come to the next slide. This slide is based on how to create data frame from list. okay, we can create data from multiple list, we can create a data frame from single list also. So that is the example to create a data frame from the list. सो फर्स्ट इम्पोर्ट, फर्स्ट थिंग क्या है, सबसे पहले आपको इम्पोर्ट करना है। वी हैव इम्पोर्टेड पांडाज एज pd1। सेकेंड लाइन डेटा वन इक्वल टू लिखा हुआ है 1 2 3 4 5। सो डेटा वन क्या हुई, ये हमारी लिस्ट है, बिकॉज स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जो भी वैल्यू देते हैं वो लिस्ट होती है। सो हमने एक लिस्ट ले ली डेटा वन नाम से। नाउ क्रिएट कर रहे हैं हम डेटा वन को हम डेटा फ्रेम में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो अगेन वेरिएबल लिया हमने df1 एंड df1 इक्वल टू pd1। pd1 क्या है, लाइब्रेरी का निकनेम है। pd1 डॉट डेटा फ्रेम इन ब्रैकेट डेटा वन। डेटा वन किसका नाम है, लिस्ट का नाम है ना। और प्रिंट df1 करेंगे तो आउटपुट आपको कुछ इस टाइप से मिलेगा, है ना। ये येलो कलर्स में हमने आउटपुट दिया हुआ है 0 1 0 2 2 3 3 4 4 5। सो 0 1 2 3 4 इंडेक्स है एंड 1 2 3 4 5 क्या है, वैल्यू दी हुई है ना। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। दूसरे एग्जाम्पल में लिस्ट ऑफ लिस्ट यानी 2D लिस्ट ली हुई है ना। एक लिस्ट हो गई फ्रेया 10, देख रहे हैं आप यहाँ पर, एक लिस्ट हो गई फ्रेया 10, दूसरी लिस्ट हो गई मोहन 12 एंड तीसरी लिस्ट हो गई 12 द्विवेदी 13, ठीक है। अब हमने मल्टीपल लिस्ट ले ली, एक के अंदर एक दूसरी लिस्ट ले ली। नाउ df1 क्रिएट होगा, डेटा फ्रेम अब किस फॉर्म में होगा, टेबुलर फॉर्म में क्रिएट होगा। तो देखिए यहाँ पर फिर से हमने लिखा df1 इक्वल टू pd1 डॉट डेटा फ्रेम एंड डेटा वन क्या हो गया, ऊपर जो आपकी लिस्ट थी उसका नाम हो गया। देन कॉलम्स, दूसरा जो हमने ऊपर सिंटेक्स देखा था उसमें अपने कॉलम्स इक्वल टू लिखा नेम कॉमा एज। तो जो फ्रेया मोहन और द्विवेदी है, जो टेबल में कॉलम्स का रूप बनेंगे, एक कॉलम बनेगा तो उसका नाम क्या रख दिया हमने, नेम रख दिया, और दूसरे कॉलम का नाम क्या रख दिया, एज रख दिया। तो यहाँ पर आप देखो ये आउटपुट आ रहा है, ये है आपका आउटपुट, ठीक है, नेम एज। तो ये हमारा 2D डेटा फ्रेम क्रिएट हो गया, ओके। एंड इस टाइप से फिर हम यहाँ पर लिखा हुआ है नीचे न्यूमेरिक वैल्यूज़ फॉर फ्लोट। न्यूमेरिक वैल्यूज आपको लिखना है तो pd1 डॉट डेटा फ्रेम एंड यहाँ पर डेटा कॉलम्स इक्वल टू नेम कॉमा एज और डी टाइप ले लिया फ्लोट। तो न्यूमेरिक वैल्यूज़ का डेटा टाइप क्या हो जाएगा, फ्लोट हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, नाउ कम टू द नेक्स्ट स्लाइड। So we have created data frame from list. Now this is the data frame from dictionary. Okay, अब data frame को dictionary से कैसे create करें, the same syntax। आप यहाँ पर सबसे पहले हमने import किया किसको, import pandas as pd1 और फिर हमने ली डिक्शनरी। डिक्शनरी का नाम फिर से डेटा वन रखा। डिक्शनरी में हमें पता है कि डिक्शनरी हमेशा कर्ली ब्रेसेस से स्टार्ट होती है और कर्ली ब्रेसेस पे क्लोज होती है। और डिक्शनरीज के अंदर दो वैल्यूज होते हैं, पहला की और दूसरा वैल्यू। तो की वैल्यू कॉम्बिनेशन होता है, देन कॉमा, फिर से एज हो गई की और 9 और 10 क्या हो गई, वैल्यू। चूँकि फ्रेया और मोहन एक स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर दिया हुआ है तो ये एक यूनिट कहलाई। ओके, सो डेटा वन में नेम क्या हो गई, की हो गई, एंड फ्रेया मोहन मोहक क्या हो गया, वैल्यू हो गई। फिर कॉमा के बाद एज की हो गई और 9 10 क्या हो गए, वैल्यू हो गई। तो ये तो हमारी डिक्शनरी है, डेटा वन क्या हुई हमारी डिक्शनरी। अब इस डिक्शनरी को डेटा फ्रेम में कन्वर्ट करना है तो द सेम सिंटेक्स df1 इक्वल टू pd1 डॉट डेटा फ्रेम इन ब्रैकेट डेटा वन। अब डिक्शनरी को क्रिएट करने से, डिक्शनरी से क्रिएट करने से क्या फ़ायदा होगा, जो हम कॉलम्स के नेम देते थे उसमें कॉलम्स के नेम अपने आप आ जाएंगे। जो की थी वो कॉलम नेम बन जाएंगे और जो वैल्यूज़ थी वो उसके कॉलम्स बन जाएंगे।
तो देखिए कैसे आउटपुट इसका देखते हैं यहाँ पर। देखें, नेम और एज। नेम क्या थी हमारी, की थी ऊपर, है ना। नेम क्या थी, की थी, तो नेम क्या बन गई इसका, कॉलम का नेम बन गया। और एज क्या हो गई, कॉलम, दूसरे कॉलम का नेम बन गया। और यहाँ पर 1 और 2 वैल्यू हो गई, फ्रेया 9 10, मोहक 10, और 1 और 2 क्या हो गए उसके इंडेक्स हो गए। नाउ लेट्स लर्न हाउ टू चेंज इंडेक्स। तो नीचे लाइन पे देखें कि आप इंडेक्स, तीसरा जो आर्गुमेंट था डेटा फ्रेम को क्रिएट करने का, वो था इंडेक्स। तो आप यहाँ पर देखें df1.pd1.data frame, डेटा 1 क्या हो गया, डिक्शनरी का नाम हो गया इंडेक्स। इंडेक्स दे दिए रैंक 1, रैंक 2, रैंक 3, रैंक 4। इस टाइप से आप इंडेक्सेस दे सकते हैं, जो जिसकी भी डिक्शनरी का आपको इंडेक्स, डेटा फ्रेम का जो इंडेक्स चेंज करना हो तो भी हम इंडेक्स चेंज कर सकते हैं। सीरीज में भी हमने सीखा था कि कैसे इंडेक्सेस को चेंज किया जाए, है ना। ओके, नाउ नेक्स्ट, क्रिएट डेटा फ्रेम फ्रॉम लिस्ट ऑफ डिक्शनरीज, यानी लिस्ट ऑफ डिक्शनरी, फ्रॉम लिस्ट ऑफ डिक्शनरीज। अभी पहले वाले एग्जाम्पल में डिक्शनरी के अंदर लिस्ट थी, इसमें लिस्ट के अंदर डिक्शनरी है। आप देख रहे हो एक डिक्शनरी यहाँ पर है x12 y2, x1 y2, और एक डिक्शनरी यहाँ पर है x5 y4 z5। ठीक है, तो लिस्ट ऑफ डिक्शनरीज से भी हम डेटा फ्रेम क्रिएट कर सकते हैं। वो सिंटेक्स pd1.data_frame एंड data1, यानी आप चाहे लिस्ट ले लें, चाहे सीरीज ले लें, चाहे लिस्ट ऑफ डिक्शनरी ले लें, चाहे डिक्शनरी ऑफ लिस्ट ले लें, सभी से हम डेटा फ्रेम क्रिएट कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखने वाली बात यह है कि पहली डिक्शनरी में सिर्फ 2 की वैल्यू पेयर है, x1 और y2, लेकिन दूसरी डिक्शनरी में 3 वैल्यू पेयर है, x y z के साथ 5 4 5 वैल्यू दी हुई है। तो जब आउटपुट आएगा तो एक वैल्यू नन रहेगी। नन क्यों रहेगी, क्योंकि पहली डिक्शनरी में z की वैल्यू नहीं थी। तो यहाँ पर एक नन कीवर्ड होगा। नन का मतलब आपको पता है, नन मीन्स नथिंग, यानी एम्प्टी, है ना। सो अपने आप जो कॉलम यहाँ पर नहीं है, यदि z के बाद एक कॉलम और होता है w, तो उसमें भी नन आ जाता। ठीक है, तो इस टाइप से हम डेटा फ्रेम में यदि कोई वैल्यू अवेलेबल नहीं है तो वहाँ पर क्या आ जाएगा, नन वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, एंड यहाँ पर इंडेक्सेस के नाम भी चेंज कर सकते हैं। अभी इंडेक्सेस के नाम 0 और 1 है, लेकिन यदि आप इसके अंदर आप डेटा 1 के बाद यहाँ कॉमा लगा के यदि इंडेक्स इक्वल टू कुछ भी लिखेंगे तो आपकी वैल्यू, इंडेक्स इक्वल टू क्या लिखा है यहाँ पर, फर्स्ट एंड सेकंड। तो अपने आप इसके इंडेक्स जब हम डेटा फ्रेम को प्रिंट कराएंगे तो 0 की जगह फर्स्ट लिख के आ जाएगा और 1 की जगह क्या लिख के आ जाएगा, सेकंड लिख के आ जाएगा। तो इस टाइप से हम इंडेक्सेस को भी चेंज कर सकते हैं। ओके ओके, नाउ क्रिएट डेटा फ्रेम फ्रॉम डिक्शनरी ऑफ सीरीज, है ना। अब आपके पास सीरीज है और सीरीज की डिक्शनरी है, तो उससे भी हम डेटा फ्रेम को क्रिएट कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर एक सीरीज दी हुई है। डिक्शनरी कैसे बनाई, डिक्शनरी में पहले नाम लिखा 1, तो 1 के अंदर pd1.series है। pd1.series में क्या लिखा हुआ है, 1 2 3, और इनके इंडेक्स क्या है, abc है। ये सीरीज हमने अलग से बना दी, pd1.series 1 2 3 कॉमा इंडेक्स इक्वल टू abc। अब दूसरी सीरीज कॉमा लगा के फिर 2 रखा उसका की वैल्यू, और सीरीज बना दी pd1.series 1 2 3 4। अब दूसरी सीरीज में वैल्यू कौन सी है, 1 2 3 4 है, और इंडेक्स क्या है, abcd। ठीक है, जब कोई सीरीज बनाते हैं तो जितनी वैल्यूज है इंडेक्स उतने ही दिए जाते हैं, है ना। दूसरी में भी 4 वैल्यू है तो 4 इंडेक्सेस। अब इसको डेटा फ्रेम में यदि क्रिएट करेंगे, चूँकि कंप्लीट सीरीज का नाम क्या है, सीरीज ऑफ डिक्शनरीज का नाम क्या है, D1 है ना। सो डिक्शनरी ऑफ सीरीज का नाम, तो इस D1 को किस में कन्वर्ट कर दिया हमने, डेटा फ्रेम में कन्वर्ट कर दिया। अब जैसे ही इसको प्रिंट कराएंगे तो अब आप देखिए 1 जो ऊपर नाम दिया हुआ था 1 और 2, तो वो 1 और 2 किसके नाम हो गए, कॉलम के नाम हो गए।
और इंडेक्सेस क्या हो गए, ए बी सी डी, क्योंकि इंडेक्सेस यहाँ पर दिए हुए थे। अब देखिए वैल्यूज़ क्या आ गई, ए बी सी डी। चूँकि वन जो पहली डिक्शनरी थी उसमें डी की वैल्यू नहीं थी, तो डी की जगह पे क्या आ गया, नन आ गया। और टू की वैल्यू में सभी थे 1 2 3 4, तो 1 2 3 4 आ गया। ठीक है। अब एक और नया तरीका है आगे सीखने के लिए। यदि आपको अकेला कॉलम 1 प्रिंट कराना हो तो आपको पूरा डेटा फ्रेम प्रिंट कराना हो तो प्रिंट डीएफ लिख देते हैं, है ना। लेकिन यदि कॉलम 1 प्रिंट कराना है तो आप लिख सकते हैं प्रिंट डीएफ और स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर 1। यदि एक से ज़्यादा कॉलम है तो 1 के बाद कॉमा 2 कॉमा 3 कॉमा 4, इस टाइप से आप अलग अलग कॉलम्स को प्रिंट करा सकते हैं। ठीक है, ये तो हो गई बात कॉलम को प्रिंट कराने वाली। अगली लाइन में लिखा हुआ है एडिंग अ न्यू कॉलम बाय पासिंग ए सीरीज। अब मान लीजिए इसमें तीसरा कॉलम जोड़ना होता है सीरीज में, तो क्या करते हैं, चूँकि आपको पता है पहले से ही कि डेटा फ्रेम्स म्यूटेबल हैं, यानी इसमें और भी वैल्यू जोड़ी जा सकती हैं। तो यहाँ पर हम थर्ड सीरीज जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, किसके अंदर, df1 के अंदर। तो df1 के अंदर नया नाम दे दिया 3, देन हमने लिखा pd1 डॉट सीरीज 10 20 30 और इंडेक्स ले लिया abc, है ना। तो इस टाइप से क्या हुआ, दोनों के ये जो तीसरी सीरीज है वो अपने आप डेटा फ्रेम में जुड़ जाएगी। फिर यहाँ पर 3 लिख के आएगा, तीसरी जगह यहाँ पर 3 भी लिख के आएगा। ठीक है, तो इस टाइप से डेटा फ्रेम के अंदर 3 कॉलम हो सकते हैं। तो नया कॉलम कैसे बनाएंगे, डेटा फ्रेम का नाम, डेटा फ्रेम के नेम के बाद नए कॉलम का नाम, उसके बाद न्यू वैल्यूज, चाहे वो सीरीज से हो, चाहे वो लिस्ट से हो, चाहे वो डिक्शनरी से हो। यहाँ पर सीरीज से बनाया गया है pd1 डॉट सीरीज 10 20 30 इंडेक्स abc। इस टाइप से तीसरा कॉलम आपके df1 में जुड़ जाएगा। और एक नया तरीका है कॉलम्स को जोड़ने का कि आप एग्जिस्टिंग कॉलम्स को मर्ज करके भी नया कॉलम बना सकते हैं। जैसे ही df4 बना रहे हैं, df1 के अंदर फोर्थ कॉलम डाल रहे हैं, तो हमने लिखा df1 4 इक्वल टू df1 1 प्लस df1 3, यानी 1 और 3 की वैल्यूज़ क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी, और 1 और 3 की वैल्यूज ऐड होके नया कॉलम बन जाएगा df4। तो इस टाइप से df1 के अंदर 4 कॉलम हो जाएंगे, 1 2 3 4, है ना। यहाँ पर थर्ड कॉलम आ जाएगा, यहाँ पर फोर्थ कॉलम आ जाएगा और उसकी वैल्यू चल जाएगी। ठीक है, तो ऐसे हम कॉलम्स के नए कॉलम्स जोड़ सकते हैं डेटा फ्रेम के अंदर, नई वैल्यूज के साथ जोड़ सकते हैं, या पुरानी वैल्यूज को जोड़ के घटा के मल्टीप्लाई करके भी नया कॉलम जोड़ सकते हैं डेटा फ्रेम्स के अंदर। ठीक है, अब डेटा फ्रेम का एक और तरीका है कि टेक्स्ट फाइल्स, यदि आपकी नोटपैड में या कहीं पर आपने टेक्स्ट फाइल बनाई हुई है तो टेक्स्ट फाइल से भी डेटा फ्रेम बनाया जा सकता है। मान लीजिए आपके पास एक टेक्स्ट फाइल है और उसके अंदर वैल्यूज कुछ ऐसे टेबुलर फॉर्म में दी हुई हैं, तो इन टेक्स्ट फाइल को डेटा फ्रेम में कन्वर्ट किया जा सकता है। तो डेटा फ्रेम में कन्वर्ट करने के लिए हम एक नया मेथड यूज़ करते हैं, उस मेथड का नाम है रीड टेबल। तो रीड टेबल मेथड से हम जो नोटपैड है उस नोटपैड की वैल्यूज़ को रीड कर सकते हैं और उसे डेटा फ्रेम में कन्वर्ट कर सकते हैं। देखें कैसे कन्वर्ट हो रहा है। तो यहाँ पर सिंटेक्स दिया हुआ है df, है ना, df इक्वल टू pandas डॉट रीड टेबल। ये पाथ दिया हुआ है। यदि आपकी जो नाम है नोटपैड फाइल या टेक्स्ट फाइल का, एयर पे नाम दिया हुआ है dists.txt और ये इनपुट फोल्डर के अंदर है। आप चाहें तो डायरेक्टली जो रूट जहाँ पर आपका प्रोग्राम सेव है वहीं पर एक टेक्स्ट फाइल क्रिएट कर सकते हैं। और एक नया इसके अंदर आर्गुमेंट दिया हुआ है डेलीमीटर अंडरस्कोर वाइट स्पेस इक्वल टू ट्रू। डेलीमीटर मतलब दो टेक्स्ट के बीच में जो स्पेस दिया हुआ है ना, वो क्या है, वाइट स्पेस है, तो इक्वल टू ट्रू दिया हुआ है, यानी वाइट स्पेसेस को इग्नोर करके वो नेक्स्ट कॉलम को ले लेगा उसमें, है ना। एंड नेम्स इक्वल टू ABC, नेम क्या दे दिए गए हैं उनके, ABC दिए हुए हैं। ठीक है, तो डेटा फ्रेम में कॉलम के नेम ABC हो जाएंगे, उनका डेटा टाइप फ्लोट या इंट 64 जो भी देना हो वो दे सकते हैं,
और साथ में ये जो वाइट स्पेस दिए हुए हैं बीच बीच में, इनका मतलब होगा कि ये एक कॉलम है। यानी 1 1 1 2 एक कॉलम हो गया, 1 2 3 1 एक कॉलम हो गया, और ये तीसरा कॉलम हो गया। इन तीनों कॉलम्स के नाम क्या हो गए? इन तीनों कॉलम्स के नाम दिए हुए हैं यहाँ पर ABC। ठीक है, तो इस टाइप से टेक्स्ट फाइल से भी हम एक डेटा फ्रेम क्रिएट कर सकते हैं। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। इसी टाइप से अगला जो डेटा फ्रेम है, एक और तरह की फ़ाइल होती है, दैट इज़ कॉल्ड CSV फाइल। CSV फाइल्स को हम एक्सेल से क्रिएट कर सकते हैं, है ना। एक्सेल में जब आप CBSE का रिजल्ट वगैरह आता है हमारे पास, पूरे स्कूल का रिजल्ट, तो वो किस फॉर्म में आता है? CSV फाइल के फॉर्म में आता है। CSV की फुल फॉर्म होती है कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज़। यानी यहाँ पर देखिए नीचे, यहाँ पर कॉमा सेपरेटेड वैल्यू दी हुई है, डेट, फिर प्राइस के बाद कॉमा लगा है, फिर फैक्टर 1 के अलावा फिर फैक्टर 2 के अंदर कॉलम। इसी टाइप से इसमें भी कॉमा लगा हुआ है, इस टाइप में भी कॉमा लगा हुआ है। तो ये क्या है? एक CSV फाइल है। इस CSV फाइल को आप एक्सेल सीट जैसे बनाते हैं एक्सेल में, सिंपली एक कॉलम में डेट लिख दीजिए, एक में प्राइस, इसमें फैक्टर, एक में फैक्टर 2 लिख दीजिए। फिर सेव एज में जाके वहाँ पर एक्सेल फाइल की जगह सेलेक्ट करेंगे CSV फाइल, तो हमारी एक CSV फाइल क्रिएट हो जाएगी। ठीक है, अब इस CSV फाइल का कोई पाथ होगा, हो सकता है माई डॉक्यूमेंट में सेव हो सकता है C ड्राइव में सेव हो सकता है जहाँ पर आपने प्रोग्राम सेव किया है वहाँ पर भी सेव कर सकते हैं। तो अच्छा तरीका है कि जो आप सीख रहे हैं, जहाँ पर आपके प्रोग्राम सेव हैं वहीं पर आप एक CSV फाइल क्रिएट कर लें। तो CSV फाइल को इंपोर्ट करने का या रीड करने का क्या तरीका है, उसके लिए हम एक फंक्शन यूज़ करते हैं, रीड CSV, है ना। रीड CSV फंक्शन का यूज़ क्या होता है कि रीड CSV फंक्शन से हम CSV फाइल को रीड कर सकते हैं। तो तरीका क्या है? वही डेटा इक्वल टू PD.read.CSV एंड फाइल नेम्स डॉट CSV, जो भी आपकी फ़ाइल का नाम है, ठीक है, उस फाइल नेम के अकॉर्डिंग आप क्या कर सकते हैं? CSV फाइल को क्रिएट कर सकते हैं, और फिर उसे कन्वर्ट करना है PD डॉट डेटा फ्रेम और CSV फाइल का नाम, तो हमारी CSV फाइल ऐड हो जाएगी। ठीक है, ओके। नाउ तो ये मैंने आपको तरीके बताए, मैं फिर से रिवाइज करता हूँ। इससे आगे की क्लास हम अगले उसमें लेते हैं कि हम CSV फाइल से डेटा फ्रेम क्रिएट कर सकते हैं, हम टेक्स्ट फाइल से डेटा फ्रेम क्रिएट कर सकते हैं, हम सीरीज से, जो सीरीज की डिक्शनरीज है, उस सीरीज ऑफ डिक्शनरीज से, डिक्शनरी ऑफ सीरीज से भी हम डेटा फ्रेम क्रिएट कर सकते हैं, नए कॉलम्स को जोड़ सकते हैं, पुराने कॉलम से नया कॉलम क्रिएट कर सकते हैं। ओके, इसके अलावा यहाँ पर लिस्ट ऑफ डिक्शनरीज से हम डेटा फ्रेम क्रिएट कर सकते हैं। इसके अलावा आप ND एरे ऑफ डिक्शनरीज से क्रिएट कर सकते हैं, और यहाँ पर लिस्ट से क्रिएट कर सकते हैं, सीरीज से क्रिएट कर सकते हैं। तो इतने सारे तरीके आपके लिए बताए जिससे हम डेटा फ्रेम क्रिएट करते हैं, है ना। आज के लिए इतना ही। आप अगली क्लास में मैं आपको इस पे कुछ अरिथमेटिक ऑपरेशंस करके